السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرمسرت دن، فضا درود و سلام کی صداؤں سے معطر، تمام شہروں اور دیہاتوں میں جلوس، درود و سلام اور محافل نعت کا انعقاد، مساجد، گھروں، گلیوں اور اہم سرکاری عمارتوں پر چراغاں، دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد، اسلام آباد میں قومی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف اور معاشرے کے کمزور طبقات کی فلاح کا درس دیا۔ انصاف کی فراہمی اور پسماندہ طبقوں کی فلاح کے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں۔ قومیں ہمیشہ اتحاد و اتفاق سے بنتی ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا قومی سیرت کانفرنس سے خطاب۔ مستونگ میں الفلاح روڈ پر بازار میں دھماکہ، ڈی ایس پی سمیت 45 افراد جاں بحق، 50 سے زائد زخمی، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ دھماکے کے وقت لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ واقعے کی تحقیقات جاری، بلوچستان حکومت کا صوبے بھر میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ ہنگو میں پولیس کی بروقت کارروائی، خودکش حملہ کی مسجد میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ دھماکے میں 4 افراد جاں بحق، 10 زخمی، امدادی کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے دوسرا دہشت گرد ہلاک۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات کا دھماکے کی جگہ اور سی ایم ایس کا دورہ، سیکیورٹی اداروں کی بروقت کارروائی کی تعریف۔ صدر مملکت اور نگراں وزیر اعظم کی مستونگ اور ہنگو میں دھماکوں کی شدید مذمت، دہشت گردی کے خاتمے کے قومی عزم کا اعادہ۔ ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والے عناصر کو مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، متعلقہ حکام کو زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی قوم اور اداروں کی قربانیاں کسی سے کم نہیں۔ کل عدم ٹی ٹی پی کے ساتھ اپنی سرزمین پر مقابلہ کر رہے ہیں۔ افغان سرزمین پر ان کی پناہ گاہیں اہم مسئلہ ہیں۔ بلوچستان میں ملک دشمن عناصر اور سرحد پار سے کل عدم ٹی ٹی پی کی کارروائیاں چیلنج ہیں۔ فسادات، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ میں ملوث افراد سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ ملک میں شفاف اور منصفانہ انتخابات کے لیے تمام تقاضے پورے کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی بی بی سی کے پروگرام میں گفتگو۔ افغانستان سے کل عدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شدید فائرنگ کا تبادلہ، 3 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی۔ دفاع وطن کا فریضہ انجام دیتے ہوئے دھرتی کے 4 ثبوت شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا ملک کے امن اور خوشحالی کے لیے دشمن عناصر کو ناکام بنانے کے لیے اقدامات جاری رکھنے کا عزم۔ پاکستان اور خلیج تعاون کونسل کے درمیان آزادانہ تجارتی معاہدے کے لیے مذاکرات مکمل۔ وزیر تجارت گوہر اعجاز اور سیکریٹری جنرل جی سی سی نے ریاض میں مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ 2009 سے اب تک خلیج تعاون کونسل کا کسی بھی ملک کے ساتھ آزادانہ تجارت کا یہ پہلا معاہدہ ہے۔ معاہدہ پاکستان اور خلیج تعاون کونسل کے ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید تقویت دے گا۔ نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز۔ مقبوضہ کشمیر کے راجوری اور پونچھ اضلاع میں پیراملٹری کی مزید 2 بٹالین تعینات، جدوجہد آزادی دبانے کے لیے قابض بھارتی فوج کے گھروں پر چھاپے، بے گناہ نوجوانوں کی گرفتاریاں، حریت قیادت کا جدوجہد آزادی منطقی انجام تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ۔
मोदी ने इंतखाबात जीतने के लिए भारतीय जमहूरियत को ही दांव पर लगा दिया। इलेक्शन में कामयाबी के लिए मजहब कार्ड का एक बार फिर इस्तेमाल। बीजेपी सोशल मीडिया पर मुसलमान मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तरवीज। मकसद इंतहा पसंद हिंदुओं की हिमायत हासिल करना है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पुरतशद्दुद भारतीय दिफाई पॉलिसी का राज फाश कर दिया। मोदी सरकार के इख्तिदार में आते ही भारत की दिफाई पॉलिसी ने इंतहा पसंदी का रूप धार लिया। 2014 में भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने दूसरे मुल्कों को खुलम खुला धमकी दी। कैनेडियन वजीर आजम के इंकशाफात के बाद भारत की जारहाना दिफाई पॉलिसी खुलकर दुनिया के सामने आ गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल। अमेरिका की यूक्रेन के लिए मजीद $30 करोड़ इमदाद की मंजूरी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में बिल के हक में 311 और मुखालफत में 117 वोट डाले गए। रूस के फजाई दिफाई निजाम ने 11 यूक्रेनी ड्रोन तबाह किए हैं। फ्रांसीसी वजीर दिफा की कीव में यूक्रेनी सदर से मुलाकात। ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। नाइजर में अस्करियत पसंदों का सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमला। फायरिंग के तबादले में 100 दहशतगर्द हलाक, 12 फौजी भी मारे गए। वाकया दारुल हुकूमत नियामी से 200 किलोमीटर दूर गंदाजी शहर में पेश आया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बलाई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात की बलाई खैबर पख्तूनख्वा, खिता पटुहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। That's a beautiful shot. That's a great hit that was too. Straight down the ground for 4. Option. आईसीसी वर्ल्ड कप हैदराबाद में वार्म अप मैच। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को 346 रन का हदफ। मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी, बाबर आजम के 80 और सऊद शकील के 75 रन। न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। मैच देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। एशियन गेम्स स्क्वाश इवेंट में पाकिस्तान फाइनल में कल भारत से मुकाबला होगा। कशमाला तलत ने शूटिंग की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांसी का तमगा जीत लिया। बेहतरीन स्कोर 218.2 रहा। एशियन गेम्स में मेजबान चीन के तलाई तमगों की सेंचुरी। 104 सोने, 62 चांदी और 32 कांसी के तमगों के साथ सर फहरिस्त। एशियन गेम्स पीटीवी स्पोर्ट्स से HD पर बराह रास्त। जामा है तेरा कुरआन, अमामा है तेरा मिंबर, तेरा शेबरी या रहमतुल लिल आलमीन। बलगल उला बेकमालिही, कशफत दुजा बेजमालिही, हसुनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। नाज़रीन, मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में रैलियों और जुलूस निकाले गए। मसाजिद, मोहल्लों और अहम इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया। मुहसिने इंसानियत खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत की मुनासबत से सीरत कॉन्फ्रेंसेस और नातिया महाफिल का इन्नकाद किया जा रहा है। आशिक़ान रसूल बारगाह रिसालत में दरूद सलाम पेश कर रहे हैं। दिन के आगाज़ पर वफाक़ी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल व इंसाफ का दर्स देते हुए जुल्म और जबर का खात्मा किया। इस्लामाबाद में कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंसाफ की बालादस्ती और पसमानदा तबकों की फलाह के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्की माशी इस्तेहकाम के लिए हिकमत अमली सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में के मौजू पर मुनक्कदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात के लिए एक टीम मुरतब की जिसने दुनिया में इंसाफ का बोलबाला किया। जहाँ जुल्म था, जबर था, जहाँ एक्सप्लॉयटेशन थी,
وہاں پر وہ ٹیم بنائی جو انقلاب لے کر آئی دنیا کے اندر. 20 سال اور 25 سال کے اندر دنیا کے اندر فرق پڑ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ معیشت کی بات کریں تو اصولوں کے بغیر معیشت نہیں. تو اصل میں اسلامی معاشرہ بنیاد اس کی معاشرے کے غریب لوگ ہیں. وہاں سے بات شروع ہی وہیں سے ہوتی ہے اور ان کے درمیان انصاف. انہوں نے کہا کہ بہترین معاشرے کے قیام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصول وضع کیے آج بھی ان پر عمل کر کے فلاحی ریاست بنایا جا سکتا ہے. جب بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ذمہ دار بنا کر بھیجا, جو ایگزیکٹو گئے, انہوں نے کہا کہ اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ وہاں کی عوام کے ساتھ کرو. جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بڑی اچھی مثال ہے کہ بڑے رئیس آدمی تھے, ان کی بیوی بھی بڑے رئیس خاندان سے تھیں. جیسے ہی وہ خلیفہ بنے پہ گھر آئے, گھر آ کر کہا کہ جتنے ملازم ہیں وہ چلے جائیں کیونکہ اب میرے پاس وہ پیسہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کی تنخواہیں دوں. صدر مملکت نے کہا کہ خواتین کو ترقی کے دھارے میں لائے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ پاکستان بن نہیں سکتا جب تک ہماری بہنیں معیشت کے اندر کام نہیں کریں گی. بی بی خدیجہ واز اے بزنس وومن. اس سے بڑی مثال کہاں سے ملے گی؟ میں جتنے چیمبرز آتے ہیں, سب لوگ آتے ہیں میرے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں, میں پوچھتا ہوں کہ تم لاتے ہو یہ کہ جی یہ میرا بیٹا ہے, اب میں اس کو کاروبار میں شامل کر رہا ہوں. سب مرد ہی مرد نظر آتے ہیں. کبھی یہ بھی مجھے آ کر کہو کہ یہ میری بیٹی ہے, میں اس کو یہ میری بہو ہے, اس کو میں نے کاروبار میں شامل کیا. تو یہ اندر سے معاشرہ بدلے گا نا. نگران وفاقی وزیر مذہبی امور انیک احمد نے کہا کہ اسلامی تعلیمات کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہی معاشی استحکام ممکن ہے. دین اسلام مساوات کا درس دیتا ہے. کانفرنس کے اختتام پر صدر ڈاکٹر عارف علوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی کتابوں کے مصنفین میں چیک اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے. اس موقع پر امت مسلمہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی. محمد مظہر عباس, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی قوم اور اداروں کی قربانیاں کسی سے کم نہیں. ہمارے ادارے اس افریت سے نمٹنے کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں. بی بی سی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں ملک دشمن عناصر اور سرحد پار سے کل عدم ٹی ٹی پی کی دہشت گرد کارروائیاں چیلنج ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کی اہم وجہ افغانستان سے اتحادی افواج کی جانب سے انخلا کے وقت چھوڑا گیا اسلحہ اور اضافی سامان ہے. نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کل عدم ٹی ٹی پی کے ساتھ اپنی سرزمین پر مقابلہ کر رہا ہے. افغان سرزمین پر ان کی پناہ گاہیں اہم مسئلہ ہیں. ملک کی صورتحال سے متعلق سوال پر انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ فسادات, توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ میں ملوث افراد سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا. انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق معاملات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. نگراں حکومت عدالت کے فیصلوں کو کالعدم نہیں کر سکتی. آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کرتے ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو بھرپور معاونت فراہم کی جائے گی. نگراں حکومت کی معاشی ترجیحات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرنسی سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے. اس کے ساتھ سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. ناظرین, مستونگ میں الفلاح روڈ پر بازار میں دھماکے سے 45 افراد جاں بحق اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے. دھماکہ صبح اس وقت ہوا جب لوگ عید میلاد النبی کے جلوس میں شرکت کے لیے جمع ہو رہے تھے. تفصیل بتا رہے ہیں وقار احمد. سانحہ مستونگ پر حکومت بلوچستان نے صوبے بھر میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے. دھماکہ اس وقت ہوا جب لوگ ربیع الاول کی مناسبت سے مستونگ کے وسط میں واقع مدینہ مسجد میں محفل میلاد اور جلوس کے لیے جمع ہوئے تھے. دھماکے میں ڈی ایس پی سٹی نواز کشکوری بھی شہید ہوئے. لاشیں نواب غوث رئیسانی ہاسپٹل اور ڈی ایچ کیو مستونگ لائی گئیں. سیریس زخمیوں کو فرسٹ ایڈ کے بعد مستونگ سے کوئٹہ ریفر کیا گیا. مستونگ دھماکے کے 51 زخمی ٹراما سینٹر کوئٹہ لائے گئے. یہ آج کا جو واقعہ ہے اس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے, لیکن جو بھی ہے وہ ملک کے کیا انسانیت کے دشمن ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد تھا, تو ان چیزوں پہ جو کر سکتا ہے وہ یقیناً انسانیت کا دشمن ہے, حیوانوں سے بھی بدتر ہے. یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. پورے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہدایت جاری کر دیے ہیں, چاہے وہ بی ایم سی ہاسپٹل ہے, چاہے وہ سول ہاسپٹل جہاں پہ میں کھڑا ہوں سینٹیمنٹ پروونشل ہاسپٹل, چاہے وہ شیخ زید اسپتال اگر کوئی جا رہے ہیں, میں نے ہدایت جاری کر دیے ہیں. جو ہمارا عملہ ہے اس کو میں نے سٹینڈ بائی کر دیا ہے. دھماکہ خودکش اور ڈی ایس پی دہشت گردوں کا ہدف تھے. نگران سی ایم بلوچستان نے ذمہ داروں کی جلد گرفتاری کا حکم دیا ہے. نگران وزیر داخلہ نے واقعے کی فوری رپورٹ طلب اور سیکیورٹی سخت کرنے کے احکامات دیے ہیں. گورنر بلوچستان اور نگران وزیر اطلاعات نے بھی واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. شہید ڈی ایس پی کی میت نماز جنازہ کے بعد آبائی علاقے روانہ کی گئی. دیگر میتیں ریسکیو ایمبولینسز سے گھروں کو منتقل کی گئیں. وقار احمد, پی ٹی وی نیوز, کوئٹہ.
ہنگو میں پولیس نے دہشت گردی کی بڑی کارروائی ناکام بنا دی۔ اطلاعات کے مطابق خودکش حملہ آور نے نماز جمعہ کے دوران مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ خودکش حملہ آور کے خود کو اڑا لینے کے نتیجے میں ہونے والے دھماکے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 10 زخمی ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر ہنگو کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے دوسرے دہشت گرد کو ہلاک کر دیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لیتے ہوئے امدادی کارروائیاں شروع کر دیں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ علاقے میں سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے ہنگو میں جائے وقوع کا دورہ کیا اور آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکاروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی بروقت کارروائی کو سراہا۔ کور کمانڈر پشاور نے سی ایم ایچ ٹرل کا بھی دورہ کیا اور دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی۔ لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے کہا کہ دہشت گردوں کو مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈاپور اور چیف سیکریٹری اسلم چودھری نے بھی ہنگو کا دورہ کیا اور دھماکے کے بعد امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پولیس فورس کے عزم اور بلند حوصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ بروقت کارروائی سے دہشت گرد مسجد میں داخل نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کی کوشش کریں، ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا۔ جو شخص کسی لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کرے تو جہنم کی آگ میں اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، جس سے وہ اپنے پیٹ میں ضرب لگا رہا ہوگا اور اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ناظرین، صدر ڈاکٹر عارف الوی اور نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے مستونگ اور ہنگو میں دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے کے قومی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے دھماکوں میں قیمتی جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش کرنے والے عناصر کے مذموم عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کی جائے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ملک دشمن عناصر کی بزدلانہ کارروائیاں پاکستان میں امن اور خوشحالی کو سبوتاژ نہیں کر سکتی۔ مسجدوں کے اندر اور اسلام کے نام پر یہ خوارجی جو ہیں وہ آ کر ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، ہمارے معصوم نمازیوں کو شہید کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کا جشن منا رہے ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک اور انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی، ریاست ان ظالموں کے خلاف ہر حد تک جائے گی۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے، ملک دشمن عناصر کی ایسی کارروائیوں سے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، سیکیورٹی فورسز عوام کے تعاون سے اس ناسور کا خاتمہ کریں گی۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ دہشت گردوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ان کا کسی مذہب، نظریے اور اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں۔ خون خوار درندوں کو ریاست کی طاقت سے کچل دیا جائے گا۔
निगरां वफाकी काबीना के अरकान, वज़राए आला, गवर्नर, सियासी जमातों के कायदीन और रहनुमाओं ने भी मस्तूंग और हंगू में धमाकों की शदीद मजम्मत की है। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने मस्तूंग धमाके के खिलाफ सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान करते हुए कहा है कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अमन के साथ खेलने की कोशिश की है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पूरा मुल्क खून के आंसू रो रहा है, ऐसे वाक़यात से मिलकर निमटना है। उन्होंने कहा कि हमलावर का टारगेट जुलूस था, धमाके के जख्मियों को कराची मुंतकिल करना पड़ा तो ज़रूर करेंगे। दिफाई माहिरीन ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मस्तूंग में धमाके की मजम्मत को इस्लाम और मुल्क दुश्मन अनासिर की तरफ से हमला करार दिया है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक हमारा अजली दुश्मन जो हर वक्त पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहता है, ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात करवाकर हमारी और दुनिया की तवज्जो अपने अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से हटाना चाहता है। कनाडा में सिखों को कत्ल करने में भारतीय हुकूमत और रॉ बराह रास्त मुलव्वस पाए गए हैं। दुनिया में दहशतगर्द स्टेट कहलाए जाने पर वो इंतहाई दबाव में हैं। उन्होंने कहा कि मुकद्दस मौके पर मासूम निहत्ते इंसानों को निशाना बनाने वाले मुसलमान हो सकते हैं और ना ही पाकिस्तानी। दिफाई माहिरीन का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के नाकाबिले तरदीद सबूत पाकिस्तान पहले भी दुनिया को दिखा चुका है। कुलभूषण जाधव रंगे हाथों बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करते पकड़ा जा चुका है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि टीटीपी, दाइश वगैरह को डॉलर्स देकर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाई जाए, जैसा कि पहले भी भारत मुतअद्दिद बार ऐसे घटिया हरबे इस्तेमाल कर चुका है। टीटीपी, दाइश और बलूच दहशतगर्द दुश्मन के आलाकार हैं और अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं और डॉलर्स के लिए किसी भी तरह का मजमूम काम जो उनका मकसद भी सपोर्ट करता है करने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से कलअदम टीटीपी के दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक वाक़या 28 सितंबर की शाम 5:45 बजे जिला जोब के इलाके सिम्बासा में पेश आया। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हुए। पाक अफगान बॉर्डर के करीब दहशतगर्दों के साथ झड़प में धरती के 4 सपूत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शहदा में हवालदार सतार, लांस नाइक शेर आजम, लांस नाइक अदनान और सिपाही नदीम शामिल हैं। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के अमन और खुशहाली के दुश्मनों की कोशिशें नाकाम बनाती रहेंगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने उम्रे की शहादत हासिल की। निगरां वज़ीर आज़म ने मस्जिदुल हराम में पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुसलमा के दरमियान हम आहंगी के लिए दुआ की। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने खाना काबा के अंदर नमाज अदा करने की सआदत भी हासिल की। निगरां वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हुए तो मक्का के नायब गवर्नर शहजादा बदर बिन सुल्तान ने उन्हें रुखसत किया। यौम विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुक़र्ररीन ने कहा कि सीरत तैयबा पर अमल करते हुए दुनिया और आखिरत में कामयाबी मुमकिन है। वक़ार हैदर की रिपोर्ट देखिए। खत्मी मरतबत रसूल रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। निगरान वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद ने सीरत कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आज का दिन है वजह वजूद कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन। अल्लाह अकबर। क्या मिलता है हमें, क्या सीरत है, क्या रोशनी मिल रही है, क्या उसूल हैं जो हमें बावकार अंदाज में जीना सिखाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मुस्तजाब दावत कोई नहीं हो सकता। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने भी सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा आज दुनिया भर के लिए रहमत का दिन है। उन्होंने कहा इस्लाम में रियासत का तस्वुर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ तोहफा है। मिंबर से ये लड़ाई हमने लड़नी है, वो तालीमात देनी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आज पूरी कौम जो है वो यकमुश्त हो जाए। आज के दिन ये अहद कर ले कि हम किसी किस्म की जो एक्सट्रीमिज्म है उसको प्रमोट नहीं होने देंगे अपने मुल्क में। बैनुल अक़वामी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से मुफ्ती जुबैर, समिया राहील काजी, डॉक्टर सरफराज अहमद, मुफ्ती मोहम्मद नजीब ने भी अपने अपने खिताबात में नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर रोशनी डाली। मुकर्ररीन ने कहा सरकार दो आलम से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़्व है। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में लाहौर में खसूसी तक़रीबात के इनेकाद किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सुफियान।
मोहसिन इंसानियत महबूब खुदा आकाए दो जहां ख़त्मुन्नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की मुनासबत से लाहौर शहर में मिलाद जुलूस और दरूद की महाफिल का इनेकाद किया गया। दिन का आगाज पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से 21 तोपों की सलामी से किया गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस लाहौर रेलवे स्टेशन से निकाला गया, जो अपनी रवायती रास्तों से होता हुआ दाता दरबार पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। शहर भर की मसाजिद में महाफिल नात और दरूद सलाम का भी इनेकाद किया गया। जुलूसों के रास्तों को झंडियों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर दिन भर हजूर की बारगाह में दरूद सलाम और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलहाए अकीदत पेश करते रहे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में ईद मिलादुन्नबी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम इंसानियत के लिए मशले राह है। इनकी तालीमात पर अमल से ही कामयाबी मिलती है। वज़ीर आला पंजाब ने दाता दरबार में आलमी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया और कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम मुल्कों के मंदूबीन का खैर मकदम करते हुए मुस्लिम उम्मा को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद दी। आज का दिन जितना ब्लेसिंग वाला है, जितना नेक है, डेफिनेटली वो दो ईदें अपनी इम्पोर्टेंस रखती हैं, लेकिन ये ईद उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उलमाए कराम ने जुम्मे की नमाज में खुतबात के दौरान इस बात पर जोर दिया कि हमें अपने आप को सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालना होगा। इस मौके पर अमन और अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के भी फूल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कराची, हैदराबाद, सखर समेत सिंध भर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। तफसील बता रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। शहर क़ायद में मजहबी और मुख्तलिफ सियासी फलाही तंजीमों की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रैलियाँ निकाली गईं, जबकि 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस जमात अहले सुन्नत कराची के अमीर सैयद शाह अब्दुल हक कादरी और दीगर उलमा और मशाइख की क़यादत में न्यू मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट से निकाला गया, जो एम जिना रोड से गुजरता हुआ नश्तर पार्क पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उलमाए कराम ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बनी नौ इंसान के लिए रहती दुनिया तक मशल राह है। उलमाए कराम ने मस्तूंग में होने वाले साने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हमें इत्तेहाद और इत्तफाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाले अनासर कामयाब न हो सकें। पूरी कौम कानून नाफिज करने वाले इदारों को सलाम पेश करती है। मरकजी जुलूस मेमन मस्जिद से बाद नमाज जुमा बरामद हुआ, जबकि शहर भर से मुख्तलिफ जुलूस इसमें शामिल होते रहे। सिंध के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हमरा मरकजी जुलूस का दौरा किया। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत भी दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में ही हमारी निजात है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे हर मौके पर इंतहाई मुस्तैदी से मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। सिंध के दूसरे शहरों हैदराबाद, सखर, लाड़काना, सिठारजा, मीरपुर खास, घोटकी, ठट्ठा और दीगर छोटे बड़े शहरों में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिमात हुए, जिससे खिताब करते हुए उलमाए कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के तमाम शहरों और कस्बों में जुलूस निकाले गए और दरूद सलाम की महाफिल मुनाकिद की गई। रिपोर्ट करेंगे साजिद अख्तर। पेशावर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जुलूसों, महाफिलनात और नजर और नियाज तकसीम करने का सिलसिला दिन भर जारी रहा। पेशावर में बाजारों, तमाम सरकारी और निजी इमारतों और घरों को रंग बिरंगे कुमकुमों से खूबसूरती से सजाया गया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से औकाफ हाल पेशावर में सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी की जामिन है। पेशावर में इदारे तबलीग इस्लाम के ज़ेर एहतमाम हजारों आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बड़ा जुलूस निकाला गया। जुलूस के शुरका का जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल किया गया और गुलपाशी भी की गई।
पेशावर के नवाही इलाके वोटपगा में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया। शहर भर में आशिकान रसूल ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश किए। दावत इस्लामी के तहत पर्दा बाग पेशावर में इज्तिमाई मिलाद में हजारों आशिकान रसूल ने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश किए। मर्दान हजारा, बलकंड, कोहाट, डी खान और बनू डिवीजन में अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन मजहबी जोश और जज्बे से मनाया गया। छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए। नातख्वानी और दरूद और सलाम की महाफिल का इनेकाद किया गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा न सिर्फ मुसलमानों बल्कि तमाम इंसानियत के लिए मशअल राह है। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। कोयटा समेत सूबे भर में जश्न विलादत बासादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जोशो जज्बे से मनाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सरफराज शेख। कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, जिसमें हमारे उलमा भी हैं। इसके लिए बज़ाहिर तो ये एक दहशतगर्दी का वाक़या लग रहा है और इसके लिए इंशाल्लाह हमारी CTD इस पे काम कर रही है। बहुत जल्द हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी दहशतगर्दों के। और ज़ख्मियों की तादाद भी काफ़ी है। उनको जो क्रिटिकल हैं उनको CMH शिफ्ट कर दिया गया है। जिनको यहाँ से कराची ले जाना है तो उनका वहाँ हुकूमत बलूचिस्तान उनके अखराजात इलाज के बर्दाश्त करेगी। और बहुत जल्द इंशाल्लाह इनकी कंपलसेशन, जो शहीद हुए हैं, जो डेथ्स हुई हैं, उनको जल्द से जल्द कंपलसेट किया जाएगा। मज़ीद आपके कोई सवाल हैं तो बेशक। जी बिल्कुल सुसाइड अटैक ही लग रहा है इस टाइम तक, लेकिन अभी तक हक़ाइक़ सामने नहीं आए पूरी तरह। CTD इस पे काम कर रही है। इंशाल्लाह एक दो दिन में हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे तो आपके सामने रखेंगे हम। जी बिल्कुल इंक्वायरी का हुक्म दिया है। मैं बाहर था, मैं अपना निजी दौरा मुख्तसर करके थोड़ी देर होती है कोयटा पहुंचा हूँ। आते ही मैंने लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग अटेंड की है। जी नहीं जी, अभी तक किसी ने कबूल नहीं की। देखें जी, एक जान आप जी बिल्कुल अभी तक काफ़ी ज़ख्मी हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने गाहे बगाहे आपसे वो शेयर करते रहे हैं। हमारे लिए एक जान भी कीमती है। यहाँ तो कई जानें ज़ाया हुई हैं, तो इंशाल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं। अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह जल्द हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, कोयटा समेत सूबे भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई, जिसकी तफसील बताएंगे सरफराज शेख। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। दुरूद सलाम से मुअत्तर फ़िज़ा में हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना फ़ज़ाइल व मुआज़ज़ात बयान करते हुए लाखों आशिकान रसूल अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशी में कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों से 13 छोटे बड़े जुलूस निकाले गए, जो शहर के मरकजी इलाके बादशाह खान चौक पर जमा हुए। इस दौरान उलमाए कराम व मशाइख ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। जुलूस खरोटाबाद, पश्तूनाबाद, सरियाब रोड, जॉइंट रोड, लियाकत बाजार, मस्जिद रोड, प्रिंस रोड से होता हुआ मनान चौक पहुंचा, जहां इज्तिमाई दुआ की गई। जुलूस के रास्तों पर सबील का एहतमाम भी किया गया था। सूबे के तमाम शहरों सिब्बी, नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, बारखान, ओस्ता मोहम्मद, जोब, लोरालाई, किला अब्दुल्ला, चमन, पंजगूर, तुरबत, गवादर, नौकुंडी, कलात और दीगर शहरों में भी ईद मिलादुन्नबी भरपूर अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। सिक्योरिटी के पेश नज़र कोयटा शहर में पुलिस, FC, लेवीज के 3000 से ज़ायद एहलकार तैनात हैं। जुलूस के मुकर्ररा रास्तों पर कैमरों से मॉनिटरिंग का अमल भी जारी है। ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत का तकाज़ा ये है कि आपकी सीरत तैयबा का सिर्फ ज़िक्र ही ना किया जाए, बल्कि आपकी तालीमात पर अमल करके ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल की जा सकती है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा।
जुड़वां शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। इमरान मनसब खान की रिपोर्ट देखते हैं। सरकार की आमद मरहबा और मुस्तफ़ा जान रहमत पर लाखों सलाम पढ़ते आशिकान रसूल ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाकों बरी इमाम समेत मुख्तलिफ सेक्टर से जुलूस निकाले जो सेक्टर G6 में इख्तिताम पजीर हुए। जुलूस के शुरका ने अपने अपने अंदाज में खातुमुन नबीयीन रहमतुल आलमीन वजह तख्लीक कायनात पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत व मोहब्बत का इजहार किया। वफाकी दारुल हुकूमत में सरकारी और निजी इमारतों को खूबसूरती से सजाया गया है। इसके अलावा मसाजिद में महफिल मिलाद का इनेकाद करके बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए गए। तमाम दुनिया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत में ये दिन मना रहे हैं। हमें चाहिए कि हमें सीरत रसूल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को पढ़ना चाहिए और उन पर अमल होना चाहिए। आल पाकिस्तान सीरत कॉन्फ्रेंस भी मुनक़्क़द कर रहे हैं जिसमें तमाम उलमा हज़रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। जश्न ईद मिलादुन्नबी पर रावलपिंडी में 22 नंबर चुंगी और जामा मस्जिद हनफिया से 2 मरकजी जुलूस निकाले गए। जुलूस की गुज़रगाहों के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हदिया दरूद सलाम, इज्तिमाई दुआओं, महफिल नात, मिलाद शरीफ, कसीदा बुर्दा शरीफ, खत्म दरूद पाक की महफिल का इनेकाद किया गया। अमन अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए जुलूस के दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किए गए थे। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जश्न विलादत बासादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ाद कश्मीर में भी मजहब और जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। अदील अहमद खान की रिपोर्ट। मुजफ्फराबाद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ी जुलूस सुल्तानी मस्जिद से निकाला गया, जहां आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे जुलूसों की शक्ल में जमा होते रहे। शुरका कदीम रवायती रास्तों से होते हुए अपर अड्डा में पहुंचकर केज खुर्शीद स्टेडियम में मुनक्कदा सीरत कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। सीरत कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से उलमाए किराम और नामवर नात खां शरीक हुए। इस मौके पर उलमाए किराम ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली और उनकी हयात मुबारका को इंसानियत के लिए मशअल राह करार दिया। इस मौके पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुजफ्फराबाद की कदीमी तारीखी मरकजी ईदगाह में परचम कुशाई इस्लामी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर मरकजी सीरत कमेटी अतीक अहमद कियानी ने उलमाए किराम के हमरा दुरूदो सलाम के साथ सब्ज परचम लहराया। इस मौके पर सिविल डिफेंस, स्काउट्स और मरकजी सीरत कमेटी के सिक्योरिटी स्क्वाड ने इस्लामी दी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए थे। जुलूसों के साथ साथ और गुजरगाहों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। मीरपुर, भिम्बर, कोटली बाग और रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मोहब्बत, अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया और दुरूद और सलाम की महफिल, मजालिस और जुलूसों का एहतमाम करके नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया गया। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई, जिसकी तफसील बताएंगे यासिर हुसैन अपनी रिपोर्ट में। गिलगित और गिरदो नवाह के इलाकों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जुलूस निकाले गए। गिलगित में सुल्तानाबाद से जुटियाल तक गाड़ियों का जुलूस निकाला गया। गाड़ियों पर बैनर्स और झंडे लगाए गए थे जिन पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दर्ज थे। स्कर्दू में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि दुनिया में वही कौम कामयाब है जो सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा है। मुल्क में मुख्तलिफ तबकों के माबेन हम आहंगी के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमोदात पर अमल करना होगा। इस मौके पर बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत भी पेश किए गए। जश्न ईद मिलाद के सिलसिले में स्कर्दू में रैली भी निकाली गई जो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए शाम को इख्तिताम पजीर हुई। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से शिगर में हफ्ते वहदत रैली निकाली गई। रैली मरकजी जामे मस्जिद से शुरू हुई जो हसन शहीद चौक से होती हुई हुसैनी चौक शिगर में खत्म हुई। इस मौके पर खुसूसी केक भी काटा गया और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अब कुछ बात करेंगे बिजली चोरों के खिलाफ जारी ऑपरेशन की। मुल्क भर की तरह पंजाब में भी बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। पंजाब में क्रैकडाउन की तफसील बता रही हैं शुमाइला जावेद।
पेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के 23वें रोज 479 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलविस पाए गए, जिनके खिलाफ मुतलका थानों में FIRs दर्ज करा दी गई हैं, जबकि 79 मुलजमों को गिरफ्तार भी किया गया है। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 21 कमर्शियल, 1 ज़रई और 457 घरेलू कनेक्शन शामिल हैं। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके यूनिट्स डिटेक्शन की मद में इन पर तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। गैपको रीजन में ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान मजीद 55 बिजली चोर पकड़े गए। अब तक गैपको के तमाम रीजन्स में 1200 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई और इनको 10 करोड़ 82 लाख रुपए जुर्माने किए गए हैं। फेस्को रीजन में मजीद 92 बिजली चोर पकड़े गए। इस तरह यहाँ मजमूई तौर पर पकड़े जाने वाले बिजली चोरों की तादाद 2109 हो गई है। फेस्को रीजन में अब तक 714 अफराद बिजली चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हुए और मजमूई तौर पर 9 करोड़ 80 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, पाकिस्तान और खलीज ताउन काउंसिल के दरमियान आज़ादाना तिजारत के मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। निगरान वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज और GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदेवी ने रियाज में मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। 2009 से अब तक खलीज ताउन काउंसिल का किसी भी मुल्क के साथ आज़ादाना तिजारत का ये पहला मुआहदा है। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा है कि ये मुआहदा पाकिस्तान और खलीज ताउन काउंसिल के मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देगा। इस मुआहदे पर जल्द अमल दरामद के लिए तमाम इक़दामात यकीनी बनाएंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम के रुकन की हैसियत से पाकिस्तान मीडिया ताउन के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। चीन के शहर नाइजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के TV फेस्टिवल के शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुश्तरका प्रोडक्शंस रुकन ममालिक की सकाफत और सयाहत को फ़रोग देने में मुआविन साबित होंगी और रुकन ममालिक एक दूसरे के तजुर्बात और जदीद टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। Media has a critical role in promoting peace, conflict resolution, promoting tourism, culture, dialogue, and harmony. The cooperation among the SCO members in the fields of radio, television, and other audio-visual products is the genuine expression of the Shanghai spirit. The media organizations of member states should play a positive role for conflict resolution, regional peace, and mutual development. Pakistan has recently unveiled its media policy that promotes enabling environment for our local producers to partner with international media companies for the production of films and television series. I take this opportunity to invite media organizations of the SCO member states to partner with Pakistan in co-production and joint ventures. नाज़रीन, जनूबी वज़ीरिस्तान की तरक्की के लिए पाक फ़ौज के अहम इक़दामात। इलाक़े पाक फ़ौज ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की। पाक फ़ौज ने जनूबी वज़ीरिस्तान में आला तालीम के फ़रोग़ के लिए भी इंतहाई मुस्बत इक़दामात किए हैं। कानीगरम में आर्मी पब्लिक स्कूल के क़याम इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। आर्मी पब्लिक स्कूल कानीगरम पाक फ़ौज ने साल 2004 में कायम किया था, जिसमें तलबा की कुल तादाद 250 है। स्कूल में 10,000 किताबों पर मुश्तमिल एक शानदार लाइब्रेरी भी कायम की गई है। दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए हॉस्टल की सहूलत भी दस्तियाब है, जिसमें एक वक्त में 100 तलबा रह सकते हैं। APS कानीगरम के तलबा आला तालीम हासिल करने और अपने बेहतर मुस्तक़बिल के लिए इंतहाई पुरजोश हैं। APS कानीगरम के तलबा इस अजीम काविश पर पाक फ़ौज के शुक्रगुजार हैं। कुछ बात करेंगे मकबूज आबादी कश्मीर की, जहां मोदी सरकार ने कश्मीरियों की जारी जिद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए इलाके में मजीद पैरामिलिट्री दस्ते तैनात कर दिए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मोदी हुकूमत ने जम्मू खित्ते के राजौरी और पूंछ अजला में पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 2 इजाफी बटालियन तैनात की हैं। चंद माह कबल भारत ने इन अजला में CRPF की 18 इजाफी कंपनियां तैनात की थीं। भारतीय फ़ौज ने बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एहलकारों ने मुख्तलिफ अजला में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों का सिलसिला भी जारी रखा। कई इलाकों के मकीनों ने ज़राए ब्लाग को बताया कि फोर्सेज एहलकारों ने उनकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है, क्योंकि वो बार बार घरों में घुसकर मकीनों को हिरासा करते हैं और घरेलू अशिया लूट लेते हैं। हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद खान सोपुरी, मोहम्मद सलीम जरगर, फरीदा बहनजी, यास्मीन राजा और मीर शाहिद जलीम ने श्रीनगर से जारी अपने बयानात में कहा कि भारतीय मजालिम कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत के अपने
जायज़ मुतालबे से दस्तबरदार होने पर मजबूर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अपनी उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालिका करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के हल तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मकबूजा कश्मीर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भला ने जम्मू में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मोदी की ज़ेर क़यादत बीजेपी कश्मीरियों की शनाख्त और हैसियत ख़त्म और हुकूक गस्ब कर रही है। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक ज़हनी तौर पर माजूर मुसलमान नौजवान को तशद्दुद करके मौत की नींद सुला दिया। दी इंडिपेंडेंट अखबार के मुताबिक 26 साल माजूर मुसलमान इस्टार वाहिद को मुबैना तौर पर मंदिर से खाना चोरी करने के इल्ज़ाम में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस्टार मोहम्मद के अहले खाना का कहना है कि नौजवान को इंतहा पसंद हिंदुओं ने एक खंबे से बांधकर घंटों मारा पीटा और सड़क पर फेंक दिया। जख्मों की ताब ना लाते हुए वो दम तोड़ गया।